Hello everyone, hello, how are you? So welcome to the class. Today we are going to start from today the NCERT exercises, definitions and keyword series. So in this we will we'll go through all the chapters, all the physics chapters in NCERT, we'll do all the exercises. We'll have the definitions and the keywords and the definitions as well. So feel free to take a screenshot, use them as your notes, or just take it as a revision series. So welcome. The first thing which we are going to start, the first chapter we are taking today is heat. So heat से हम start करेंगे इसको. I hope you will enjoy this series and we'll have a mentee as well. So after every today I'm going to teach you about the chapter heat. Tomorrow I will have a mentee on the chapter heat. Does that work for you all? So let me see who all are here. कितने लोग हैं यहाँ पे अभी? Hi sir, Shubhi Bansal. Hello Nirja. Hi Nirja. Hi Rakin Gamer. Hello everyone. Hi all of you. Yes. So hi, I am good. Hi Shri Shriya. Hi Aditya. Hi Sanjana. Hi Garima. Sir, is there mentee today? नहीं बेटा, mentee आज नहीं होगा. We'll have a mentee tomorrow. ठीक है? आज हम क्या करेंगे? आज हम सारे NCERT के exercises करेंगे और keywords और उनके definitions देखेंगे. Once we go through all the definition, keywords and the NCERT exercises, tomorrow we will have a mentee on the same chapter. Is that clear everyone? Is this fine with everyone? ठीक है. तो hello Arya, hello Isha, hi Aditya, and Anisha Singh is saying hi sir, happy birthday. like किसका birthday है? आपका birthday है तो happy birthday to you. May you have a good year ahead. ठीक है. Someone is asking sir how to convert centigrade into Fahrenheit. ठीक है, Fahrenheit में कैसे convert करना है? That I will show you at the end. Just remind me towards the end of the chapter. Cool? ठीक है. हेलो. तो अभी हम क्या करेंगे? विल जंप राइट इनटू इट. डायरेक्ट हम इसको स्टार्ट कर देंगे ये चैप्टर को अभी. और मेरे पीछे अभी मुझे बहुत गर्मी हो रही है, ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मेरे पीछे बहुत अच्छा एक जिफ डाला हुआ है आग का, काफी हीट निकल रही है उसमें से. सो वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं कौन हूँ ये भी बता दूं. आई एम मोहम्मद अल खालिद. मेरा नाम है मोहम्मद अल खालिद एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT गुवाहाटी. मैंने वहां से बैचलर्स ऑफ डिजाइन किया है. And here at Unacademy, I have been teaching physics to you people. And I completed the physics syllabus. And if you are new, you can go through my older videos, go through the explanations of each chapter. Some chapters are there in multiple parts. Some chapters are there in only one lecture. You can go through them. You can go through the mentee quizzes. Right now, we are doing a revision series. And here we are going to do the exercises as well. So these are kind of your notes. You can refer to them and make your own. So that's all, and we are at Unacademy. Unacademy, by the way, is the largest online learning platform in India. ठीक है, Unacademy इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है. तो Unacademy पे पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. Let us start. So what are we going to study? We are going to have a look first at the keywords and definitions. ये एक टाइम जब हो जाएगा, then we will do the NCERT exercises. ठीक है? So should I start? Hi Nikunj, hi Garima, hi Ayan Zahid, hello Aisha, hello Ayan. ठीक है. Hi Sarika, hi Neelam, hi Shivang. ठीक है. तो नीलम is saying I am Sonali. ठीक है Sonali. Fine. So the first thing, ये वाला definition अब तक आप सबको याद हो गया होगा. Yes or no? What is a conductor? ये definition I think you people remember by now क्योंकि ये हम 6th standard से पढ़ते हुए आ रहे हैं. Yes or no? So the materials which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat. ठीक है? This is as simple as that. I think ये one of the easiest definition है. Yes or no? Sir, is there mentee quiz today? नहीं, mentee will be tomorrow क्योंकि हम ये सारे NCERT exercises जब तक करेंगे हमारा टाइम खत्म हो जाएगा. ठीक है? So we'll have a quiz tomorrow on the same chapter. Mentee quiz tomorrow on this chapter. ठीक है? Yeah, तो इसका examples देखते हैं. We'll take some examples of this. Examples can be
Example, iron, copper, steel. Basically all metals are good conductors of heat. As a rule of thumb, actually you can even say that the things which conduct electricity well also conduct heat well. ठीक है ना? जितने भी heat के conductors है, electricity के conductors है, most of them are conductors of heat as well. ठीक है? यप ठीक है. Aluminum सही है. तो now conductors का जो opposite है, the opposite of conductors is nothing but insulator. जो conductor का opposite है वो क्या कहलाएगा? We'll call it an insulator. So insulators are the materials which do not allow heat to pass through them easily. ठीक है? Just the opposite of conductor is an insulator. Insulators are materials which do not allow heat to pass through them easily. इसका examples आप लोग मुझे बोलो, इसका examples बोलो. Tell me the examples of this. Sir, tomorrow Menti is in what time? Tomorrow Menti का timing will be same बेटा, same time होगा Menti. ठीक है? Menti will be at the same time. Every day I have a class at 7 o'clock. Be it Menti, be it a lecture, whatever. ठीक है? Example, we will write down some examples. Wood is a good example. Wood, plastics do not allow heat. और क्या है? Wood, plastic, wax. ठीक है? ये सारी चीजें examples है insulators की. These things can melt, but they won't allow electricity heat to pass through them. Now, what is conduction? So there are three modes of heat transfer. Heat transfer होने के तीन तरीके हैं, ठीक है? Conduction, convection and radiation. So we'll have a look at all three of them. इनका भी हम देखेंगे. तो conduction क्या है भला? Conduction is the process. Conduction is the process by which heat is transferred from the hotter end of an object to the colder end. ठीक है? ऐसे process में, for example, I have with me over here. Yes, I have a spoon with me. मेरे पास क्या है? You can see that I have a spoon. So what will happen if I start a fire under one of these ends? मैं इसके नीचे अगर fire लगा दूंगा ये spoon के नीचे, what will happen? This area will become hot. ये गर्म हो जाएगा. Yes or no? This part will become hot. And once this part becomes hot, slowly ये side by side hot होता जाएगा. तो ये end से लेके ये end तक, it will start heating, heat, और यहाँ तक पूरा आके गर्म हो जाएगा. So entire object, the heat is transferring from this end, क्योंकि flame यहाँ से heat यहाँ पे हो रहा है, तो this area becomes hot and slowly it travels from this end to the cold end. ठीक है? So the process by which the heat is transferred from the hotter end of an object to the colder end of an object is called conduction. ठीक है? और ये mainly solids में होता है. This thing happens mainly in solids. ठीक है? Sir, blade is a conductor or insulator. Blade किसका बना होता है? If the blade is made up from a metal, और मैंने non-metallic blades बहुत कम देखी है. If the blade is made from metal, definitely it's a conductor. If it's not made from metal, then it's not a conductor. ठीक है? जैसा yes. So is this clear? Conduction सबको समझ में आया ना? Conduction क्या होता है? समझ में आया तो we'll go to the next one. ठीक है? मुझे बता दो clear हुआ? Conduction clear है आपको? So today no experiment, no Ayan Zahid. अभी हम revision कर रहे हैं. Experiments खत्म हो गए हैं. We are doing revision now. Instead what I will do, I will have random videos of experiments in between. ठीक है? ये daily ऐसा चलेगा. बीच-बीच में experiments के अलग-अलग मैं class लूँगा. ठीक है ना? Okay, cool. What is heat? Heat is a form of energy. ठीक है ना? Heat एक energy है. जो गर्मी होती है उसी को heat बोलते हैं. It's a form of energy. Cool. तो ये clear है सबको? यार आजकल किसी को क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है. आप सबको बस क्लियर हो रहा है, किसी को लेकिन क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है. ये बहुत सैड है. क्यों नहीं हो रहा है क्रिस्टल क्लियर यार? क्रिस्टल क्लियर करो ना कॉन्सेप्ट्स को. जब क्रिस्टल क्लियर करोगे तो फिर याद रहेगा हमेशा के लिए. ऐसे ही बस जनरल ऐसे ओनली क्लियर रहेगा तो फिर दिमाग से भी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में. सो मेक द कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर. बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट. तो इज द कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर? बताओ मुझे क्रिस्टल क्लियर है क्या? यस अभी क्रिस्टल क्लियर है. ग्रेट. पिज्जा क्लियर भी है. वाह. ठीक है.
conductor and insulator are same. As of now you can say they are same, they are very similar. ठीक है, definition same ही है. Convection is the second method. ठीक है, convection second method है. अभी convection में क्या होगा? If you heat water को अगर आप heat करोगे, how will you heat water? I have for example some water with me. ये beaker में मेरे पास मैं इसको beaker क्यों बोलता हूँ? This is a conical flask. ये जो फ्लास्क है, ये फ्लास्क में पानी, आपको पानी दिखाई दे रहा है ना? You can see that it has some water inside it. So what will happen if I light up a flame inside? इसके नीचे if I light something up, what will happen? What will happen? जो इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में जो जो पानी आ रहा है बॉटम पे, that will become hot. ठीक है, that water will become hot and then that water will rise up. वो पानी ऊपर चला जाएगा. For example, I'll show you over here. I have a glass here. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास है पानी का. तो मैं यहाँ पे अगर पानी को गर्म करूंगा तो जो नीचे का पानी है वो गर्म होके हॉट वाटर राइजेस अप. जो भी फ्लूइड्स है जब गर्म होते हैं दे राइज अप, राइट? तो पानी गर्म हो जाएगा. साइड से ठंडा पानी वो जगह पे चला जाएगा जहां पे पहले गर्म पानी था और वो ऐसे घूम घूम के गर्म होगा. तो वाटर विल मूव. आपने बॉइलिंग वाटर को देखा ना, इट मूव्स. ठीक है, इट्स नॉट स्टिल. आप जब एक स्पून को हीट करोगे तो स्पून विल नॉट मूव, बट व्हेन यू हीट अप वाटर द वाटर स्टार्ट्स मूविंग अ लॉट. यस और नो? तो वैसे ही ये हीट कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट. द ट्रांसफर ऑफ हीट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स आर लिक्विड्स और गैसेस, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है, तो उसे हम कन्वेक्शन बोलेंगे. दिस हैपेंस इन लिक्विड्स एंड गैसेस और फ्लूइड्स एज वी कॉल इट. ठीक है, नीरजा, चॉकलेट की कसम क्रिस्टल क्लियर. आहा, सही सही सही. इसका मतलब पक्का क्रिस्टल क्लियर हो गया है. आप लोगों ने चॉकलेट का नाम ले लिया अभी तो. सो यस 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 यस. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव होके गर्म हो रहा है. दैट इज व्हाई this is called convection. The process of heat transfer due to movement of molecules within fluids is called convection. Clear है ना ये? ठीक है. पिज्जा क्लियर, पिज्जा क्लियर. सर आई डिडंट अंडरस्टैंड कन्वेक्शन. ना गौरिया, देखो क्या होगा. आई विल ड्रॉ एंड शो इट टू यू. सो हियर फॉर एग्जांपल यू हैव अ पॉट. ठीक है, आपके पास एक पॉट है. नहीं, यहां पे ड्रॉ नहीं करेंगे. आई विल ड्रॉ इट बाहर थोड़ा. कूल. आपके पास एक बड़ा सा पॉट है. ठीक है ना, ये पॉट है और आपने पॉट के नीचे फ्लेम लगाया यहां से. ठीक है, यहां से आग आ रही है पॉट के नीचे से और पॉट के अंदर क्या है? पॉट हैज अ लॉट ऑफ वाटर इन इट. इसके अंदर पानी है. सो हाउ द वाटर विल हीट अप इज, यहां पे जो पानी है ना, ये वाले एरिया में जो पानी है, दिस पानी विल गेट हॉट. वो पानी क्या होगा? वो पानी गर्म हो जाएगा. द पानी विल गर्म एंड इट विल मूव अप. वो पानी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा. ठीक है, once the पानी becomes hot, once the water becomes hot, what will happen? It will move up, it will rise up. वो जैसे ही rise up होके यहाँ टॉप पे आ गया ना, वो टॉप पे आ गया, तो जो साइड में पानी है, ठंडा पानी, that will come and take its place. वो साइड का पानी यहाँ पे आ जाएगा, साइड वाला पानी यहाँ पे आ जाएगा, साइड वाला पानी यहाँ पे आ जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगा. फिर वो ऊपर जाएगा. ऐसे घूम घूम के सारा का सारा पानी गर्म होगा. दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ठीक है ना, अभी क्लियर है? ठीक है, कूल 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 कूल. ठीक है, ये क्लियर है. सर कैन यू टेक मेंटी टुडे? बेटा टाइम नहीं बचेगा. लेट मी सी. टाइम बचेगा तो विल डिसाइड. ओके, रेडिएशन. अभी हम रेडिएशन इज द थर्ड वे ऑफ हीट ट्रांसफर. सो हीट ट्रांसफर ड्यू टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशन. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो आता है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम रेडिएशन बोलेंगे. इसको थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं. थर्मल मींस एनीथिंग टू डू विद हीट. So the transfer of heat by radiation does not require any medium. तो ये कैसा आ रहा है? You know light is a wave, right? Light ऐसा एक रे की तरह आती है, right? तो light carries heat with it. Like just like light is an electromagnetic wave. ठीक है, ये एक wave है जो sun से जैसा निकल के आया है, for example. Similarly, heat also travels like that sometimes. तो I will show you. For example, if this is the sun, ये sun है, तो सनलाइट में हीट होता है. यस और नो? सनलाइट हैज हीट इन इट. और दिस इज अर्थ.
ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, और ये सन है। तो जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट से ऐसे लाइट आ रही है अर्थ को, यस और नो? द लाइट इज कमिंग लाइक दिस फ्रॉम द सन एंड इट्स कैरिंग हीट एज वेल। लेकिन वो स्पेस में से लाइट आ रही है, तो डज इट हैव, इज देयर एयर इन द स्पेस? स्पेस में एयर है क्या? नहीं है ना। स्पेस में लिक्विड है क्या? नहीं है। स्पेस इज सॉलिड? नो। व्हाट इज स्पेस? स्पेस इज अ वैक्यूम, देयर इज नथिंग इन स्पेस, स्पेस इज एम्प्टी। उसमें से भी लेकिन इट कम्स जस्ट लाइक हाउ लाइट कम्स फ्रॉम द सन, वी गेट हीट एज वेल। So this form of heat transfer which does not require a medium is called radiation, ठीक है ना। ये डायरेक्ट लाइट के साथ निकलता है, ऐसे याद रखो आप इसे, ठीक है। कंडक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। कंडक्शन का आपने ले लिया, 3 2 1 हो गया। कन्वेक्शन का भी ले लो, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1, हाँ 5 सेकेंड्स हो गए। चलो, तो रेडिएशन आपने देख लिया ना। सो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसा ये हीट फ्रॉम सन, सन से जो हीट आ रहा है दैट कम्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। या फिर आपका एक फ्लेम है, फ्लेम से भी, जहां पे भी आपको फ्लेम दिखाई देगा, जहां पे आपको लाइट दिखाई दे रहा है, प्रोबेबली रेडिएशन इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर, ठीक है। एमिशन मीन्स कमिंग आउट, ठीक है, बाहर जो निकलता है, किसी चीज से कोई चीज एमिट होती है तो उसे एमिशन बोलते हैं। नाउ टेम्परेचर का डेफिनेशन, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वी ऑल नो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट एक एनर्जी है, बट heat is not equal everywhere, right? For example, I can have cold water, I can have hot water, तो उसमें difference क्या होगा? How do we know that कोई कौन सा कितना गर्म है? I have warm water, I have boiling or hot water, दोनों भी गर्म है, right? I have some just hot water and I have some boiling hot water. Both of them are hot, but are they same? No, right? Both of them have different amounts of heat in them. So the degree of heat, ठीक है, measure of the degree of the heat, ठीक है, हाउ डू वी फाइंड दैट आउट? वी फाइंड दैट आउट यूजिंग टेम्परेचर। तो वी नो कि ओके, ये जो बॉइलिंग वाटर है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो नॉर्मल अभी जो गर्म पानी है इट्स प्रोबेबली सम 60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी है। सो व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कितना गर्म है भाई, वो कैसा पता करेंगे हम? कितना गर्म है पता करने के लिए वी यूज टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना गर्म है वो टेम्परेचर से पता चलता है। जैसा कि हमने डिस्टेंस वाले मोशन एंड टाइम में देखा था कि यहां से कोई चीज कितना दूर है, वी मेजर इट इन मीटर्स, राइट। मीटर से हम लेंथ मीटर्स में पता करते हैं, राइट। वैसे ही हीट हम टेम्परेचर से पता करते हैं। कूल। हाय पलक, hello Prabal Singh, how are you? So Raman Sharma is saying temperature is the measure of degree of hotness of or coldness of an object. Yes, absolutely correct. Hotness और coldness कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये क्लियर है क्या? मुझे बोलो, क्योंकि मोस्टली ये क्लियर नहीं होता है बच्चों को। मैंने देखा है कि आप लोगों ने मेंटी में इसमें बहुत मिस्टेक्स भी की थी, ठीक है। सो इज द टेम्परेचर थिंग क्लियर? इज दिस क्रिस्टल क्लियर? इज इट फ्लेम क्लियर? इज इट फायर क्लियर? आई डोंट नो, वॉट एवर क्लियर है कि नहीं है मुझे बताओ। क्लियर सर, हाय हाय ईशा, हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस नाइस, ग्रेट ग्रेट। हेलो स्नेहा, स्नेहा हाय, कूल। तो इसका मतलब आप लोगों को टेम्परेचर क्लियर हो गया है, फाइन, क्लियर एज वाटर, ठीक है, कूल 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 कूल। टेम्परेचर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। देखो, टेम्परेचर इज बेसिकली अ वे ऑफ मेजरिंग के ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ठीक है। सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में मैं बताऊं तो टेम्परेचर इज अ वे टू मेजर हाउ हॉट अ ऑब्जेक्ट इज,
कि यार ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। कैसा पता करेंगे? टेम्परेचर से पता करेंगे कि हाँ ठीक है ये गर्म 30 डिग्री है, गर्म है, ये 40 डिग्री गर्म है। ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जैसा हम देखते हैं व्हेन वी गेट फीवर वी पुट अ थर्मोमीटर इन आवर माउथ, और कैसा पता चलता है 37 डिग्रीज है, ओ नॉर्मल है, थोड़ा बढ़ गया है। जैसे फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं, दैट्स अनदर वे। 102 बुखार है यानी बहुत गर्म हो गया है बॉडी। 98 है, ठीक है, अच्छा ठीक है, बराबर ये 101 बुखार हो गया, 101 टेम्परेचर है, फीवर है 101 डिग्री का, 101 डिग्री टेम्परेचर का फीवर है। ओ ऐसा, इसका मतलब इट्स मोर हॉट। समझ में आया आपको अभी टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज हाउ वी मेजर हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज, कितना गर्म है हमें पता चलता है टेम्परेचर से। ठीक है, कूल कूल कूल। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना बेटा, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक हाउ लाइट इज देयर, हीट इज आल्सो अ थिंग व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट इज अ एनर्जी, दैट्स सिंपल एज दैट। गर्मी, टेम्परेचर हमें बस ये बताती है कितना ज्यादा गर्मी है कितना कम गर्मी है, ठीक है, कूल। आई थिंक अभी ये सबको समझ में आ गया है। कूल 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 कूल। थर्मोमीटर, व्हाट इज अ थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज अ डिवाइस used for measuring temperature. What is a thermometer? आप लोग खुद ही देखो, अभी मैं अपना खुद का टेम्परेचर देख रहा हूं। ऐसे दिखते हैं टेम्परेचर। दिस इज अ थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर है ये? दिस इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के दो टाइप के होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। Laboratory thermometer is used in laboratories to measure different temperatures, ठीक है। Cool cool, temperature clear with flame and water crystal clear, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, nice। Sir, what is the difference between Fahrenheit and temperature? Fahrenheit, देखो Fahrenheit is a way of measuring temperature। टेम्परेचर को नोट करने का तरीका है। जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं ना, वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जैसा वी मेजर वेट इन ग्राम्स, वी मेजर वेट इन किलोज, राइट, वी मेजर डिस्टेंस इन फुट, इतना फुट दूर लंबा है बंदा बोल के बोलते हैं। अवर हाइट वी कैन मेजर इन मीटर्स ऑल्सो, वी कैन मेजर आवर हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑल्सो, वी कैन मेजर आवर हाइट इन इंचेस, वी कैन मेजर आवर हाइट्स इन फीट्स एज वेल। वैसे ही वी कैन मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारे अलग अलग वेज ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर है, ठीक है। सर रेडिएशन नॉट क्लियर। रेडिएशन इज बेसिकली हीट ट्रेवलिंग लाइक लाइट। लाइट की तरह जब हीट ट्रेवल करती है ना उसको रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है, कूल। सारिका नीलावर, अभी समझ में आया आपको? व्हेन हीट ट्रेवल्स लाइक लाइट दैट्स कॉल्ड रेडिएशन, ओके। Now, sea breeze or land breeze, this is थोड़ा सा important. Sea breeze and land breeze is important, guys. Sea breeze क्या होती है? कोस्टल एरिया में, ठीक है, इन अ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मीन्स नियर द सी, ठीक है, नियर द सी we will have ocean, right? यहाँ पे सी होगा बड़ा सा, so there will be lot of water over here। यहाँ पे पानी होगा बहुत ज्यादा, सी है ये, ठीक है, this all सी, ये वाटर है पूरा। and beside that we will have what? we will have land। उसके साइड में क्या होगा? जमीन होगी, धरती होगी, ये जमीन है। अभी क्या होगा यहाँ पे? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस मेनी टाइम्स बिफोर एज वेल। तो इफ वी हैव सन, ठीक है ना, यहाँ पे सन है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सन। तो सनलाइट से जब हीट होगा, डे टाइम पे जब हीट होगा, सनलाइट विल कम हियर, सनलाइट विल कम हियर, सनलाइट विल कम हियर, सनलाइट हर जगह पे जाएगा, यस और नो, सनलाइट हर जगह जाएगा। लेकिन पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम फॉर द वाटर टू हीट अप, वेयर एज द लैंड विल हीट अप वेरी क्विकली। तो जमीन जल्दी से गर्म हो जाएगी, पानी अभी ठंडा ही रह जाएगा, गर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको टाइम लगेगा, शाम तक जाके पानी गर्म होगा, सुबह सुबह तो पानी ठंडा ठंडा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? जमीन तो गर्म हो जाएगी। तो जमीन जब गर्म हो गई तो जमीन के ऊपर जो हवा है ना, द हवा विल ऑल्सो गेट हॉट, जमीन के ऊपर वाली हवा, ठीक है।
लेट मी इरेज द सन रेज, ये सन रेज को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आपको पता चल गया कि सन रेज यहाँ क्या कर रहा है। तो जो पानी है के जो हवा है ना जमीन के ऊपर, दैट विल ऑल्सो बिकम हॉट एंड इट विल राइज अप बिकॉज हॉट एयर राइजेस अप। जो हवा गर्म होती है वो ऊपर चली जाती है, राइट? वो हवा ऊपर चली गई, द हॉट एयर हैज रिजन अप नाउ। तो अभी क्या होगा, देयर इज सम कोल्ड एयर ऑन द सी। सी के टॉप पे तो हवा जो है वो ठंडी है, यस और नो? सी के ऊपर जो हवा है वो ठंडी है। द एयर ऑन टॉप ऑफ द सी इज कोल्ड, the air which was on the land it became hot and it has risen up. So this cold air sea के साइड से it will come to the land, ठीक है? ये sea है, ठीक है, ये land है। So in the daytime this cold air, this cool air will come from the sea to the land. We call this air as sea breeze, ठीक है? sea breeze बोलेंगे इसको, ठीक है? यहां पे मैंने लिख के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ड्यूरिंग द डे in coastal areas the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. जमीन के ऊपर जो एयर है वो हॉट हो जाएगी and it will rise up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. जो cool air है sea के ऊपर, it rushes in यानी तेजी से ऐसे आएगी and it will take the place of the hot air. जहाँ पहले hot air थी वो सारी जगह पे cool air आ जाएगी। This air from the sea से जो एयर आ रही है is called sea breeze. इसको हम sea breeze बोलेंगे। Is this clear guys? ये क्लियर है क्या? ठीक है, is this clear guys? Is this clear? Is this clear? बताओ यार, इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? ट्रॉफी क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर व्हाट इज सी ब्रीज? अभी तो एक्सप्लेन किया यार मैंने सी ब्रीज, ठीक है ठीक है। वाटर क्लियर, कंडक्शन कन्वेक्शन नॉट क्लियर, मैंने दो टाइम एक्सप्लेन किया है, आप पीछे जाके बाद में देख लेना वीडियो के बाद में, ठीक है? सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ओशन करंट्स? ओशन करंट्स आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है ना? कूल कूल, ये सबको क्लियर है अभी, ठीक है? क्लियर 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 क्लियर, नॉट क्लियर बट क्रिस्टल क्लियर। ओके अभिका शर्मा, बहुत सही। तो ये सी ब्रीज हो गया। इसका उल्टा रात में होगा। रात में क्या होगा, यहां पे समझो ओशन है, ठीक है ना? ये ओशन है, कूल, दिस इज द ओशन एंड दिस इज द लैंड, ठीक है? ये लैंड है। अभी रात में क्या होगा, देयर इज अ सन इन द नाइट, सन तो नहीं रहेगा, तो क्या होगा, जमीन ठंडी हो जाएगी, द लैंड विल कूल डाउन इन नाइट but the water is still warm, it will take some time to become cool. तो water के ऊपर जो air है, the air which is there on the water, पूरा दिन in the entire day the water was getting slowly heated up, so now the water is hot, ठीक है? The water is hot now and the land has cooled down because land cools down fast, land you know like heats up fast and cools down fast. तो यहाँ पे water के ऊपर there will be hot air and this hot air, this warm air will move up, this warm air will move up in the night time. This is happening in the night time, ठीक है? And the cool air which is there on top of the land, now land के ऊपर the air which is there, it is cool, so it will rush in and take this place. Land से आएगा अभी, so since this is land, this is called land breeze, ठीक है? land breeze, इसको हम land breeze बोलेंगे। so मैंने लिख के कैसे एक्सप्लेन किया इसको, at night in coastal areas the water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called land breeze, ठीक है? पानी धीमे धीमे ठंडा होगा, तो लैंड पहले ही ठंडी हो गई है, तो लैंड हैज मोर कूल एयर, तो वाटर के ऊपर वाली एयर ऊपर चली जाएगी और लैंड वाली एयर वाटर की जगह पे आके ले लेगी जगह। सो दैट इज हाउ सी लैंड ब्रीज फॉर्म्स। तो रात में हमें लैंड ब्रीज मिलेगी एंड डे में टाइम पे हमें सी ब्रीज मिलेगी, ठीक है? ओके क्रिस्टल क्लियर। सर आज मेंटी है? नहीं मेंटी आज नहीं है, मेंटी कल है, ठीक है? विल हैव मेंटी टुमारो। कूल। सो नाउ लेट्स गो टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है ना? अभी हमें एक्सरसाइजेस करना है, वी हैव टू डू द एक्सरसाइजेस नाउ। वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशंस एंड द कीवर्ड्स, ठीक है? कीवर्ड्स एंड डेफिनेशंस कंप्लीटेड,
keywords and definitions completed, ये हमने complete कर दिया है. Now time to do NCERT exercises. NCERT exercises करने का time आ गया है. तो first question, state similarities and differences between laboratory thermometer and clinical thermometer. Clinical thermometer और laboratory thermometer के बीच में similarities और differences बताइए. So we have to choose, like I have given like 2 similarities and 3 differences. ठीक है? So what is the similarity between a laboratory thermometer and a clinical thermometer? See, first thing is they both measure temperature. ठीक है ना? Both of them are used to measure the temperature. See, what is the definition of the thermometer? Thermometer is a device used for measuring temperature. ठीक है? So both clinical thermometer and laboratory thermometer measure temperature. So that is the one similarity. ठीक है? ये हमने लिखा नहीं है because it's too simple. दिविज सोलंकी मेंटी करो. नो बेटा, ये मेंटी नहीं है. मेंटी इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस इज एक्सरसाइज वाला क्लास. ये नोट्स हैं आपके. ठीक है? तो बोथ ऑफ देम आर मेड फ्रॉम लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स. उसके अंदर ग्लास ट्यूब होगा ना, लॉन्ग नैरो. देखो पास से देखने की कोशिश करो. कैन यू सी? देयर इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब इनसाइड. इसके अंदर एक लॉन्ग नैरो, एक पतला सा ग्लास ट्यूब है. ये इट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज. तो बोथ ऑफ देम हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. सो दिस इज अ सिमिलैरिटी. ये क्या है? दिस इज अ सिमिलैरिटी. ठीक है ना? बोथ ऑफ देम हैव बल्ब कंटेनिंग मर्क्यूरी. दोनों के अंदर मर्क्यूरी होगा, दोनों के पास बल्ब होगा. ठीक है ना? दिस थिंग इज कॉल्ड अ बल्ब. ये जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड अ बल्ब. उसके अंदर मर्क्यूरी होगा. ठीक है? मर्क्यूरी इज द मटेरियल, इट्स द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर. तो both of them have a bulb containing mercury. So these were the similarities. अभी हम क्या करेंगे? अभी we will have a look at the differences. Cool. So clinical thermometer is used to measure the temperature of human beings. ठीक है? Clinical thermometer जो है, it is used only for measuring the temperature of human beings. ठीक है? This is clinical thermometer. ये जो है clinical thermometer, it's used only for measuring the heat of human beings. हमारा body temperature check करते हैं. Whereas laboratory thermometer is used for measuring heat in laboratory. वो laboratory में temperature check करते हैं. You can put it in liquids, you can put it in all kinds of chemicals and find out their temperatures. ठीक है? तो वो laboratory thermometer है. तो ये क्या हो गया? This is a difference between both of them. ठीक है ना? ये एक difference है. Then clinical thermometer has a kink. ठीक है? Kink prevents the mercury from overflowing. ठीक है ना? Overflowing नहीं, like from going back inside easily. ठीक है? It keeps mercury in its place. तो clinical thermometer has a kink. Laboratory thermometer does not have a kink. Laboratory thermometer को kink नहीं होता है. सर प्लीज मेंटी. यार मेंटी मैं नहीं करूंगा. आई कांट डू मेंटी टुडे. आई हैव टू टेक द एक्सरसाइज. यार तुमको कोई समझाओ यार. इसको समझ नहीं आ रहा कि आज मेंटी नहीं कर सकते. समझाओ यार, कमेंट सेक्शन में अच्छे से जाके समझाओ. शिवांग को समझाओ कि आज मेंटी नहीं हो सकता. दिविज को भी बोलो कि आज मेंटी नहीं हो सकता. ठीक है ना? प्रथम रॉ है मिनिमम एंड मैक्सिमम. यस. सो द फाइनल डिफरेंस इज द रेंज. ठीक है? अच्छा ये तो सेकंड हो गया कि ये सेकंड डिफरेंस है. फाइनल जो है प्रथम रॉय ने जैसा बोला कि रेंज ऑफ द थर्मोमीटर्स इज डिफरेंट. तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में द मिनिमम टेम्परेचर व्हिच वी कैन मेजर इज 35 degrees and the maximum temperature we can measure is 42 degrees centigrade. Whereas in a laboratory thermometer the minimum temperature can go to -10 degrees and the maximum temperature can go to 110 degrees. ठीक है? So this is the final difference between the laboratory thermometer and clinical thermometer. Cool guys? ठीक है ना? आपको समझ में आया what are the differences and what are the similarities? Is this clear? Sir, can mercury be harmful? Yes बेटा, mercury is harmful as long as you do not break this. अगर आप इसको ब्रेक नहीं करोगे तो you are safe. जब तक कुछ नहीं होगा. But if you break this,
and mercury escapes from this, then it can be harmful. ठीक है, so you have to be very careful with a thermometer. Sir, can you tell what is the purpose of kink in thermometer? Thermometer में kink इसीलिए होता है so that the mercury when we measure, हम जब ह्यूमंस इसको मुंह में रखते हैं ना तो वी कीप इट साइडवेज, राइट, वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसके बाद में हम उसको स्ट्रेट रखेंगे, मुंह में से निकाल के देखेंगे तो टेम्परेचर विल बी रिड्यूस्ड नाउ, मुंह में से निकालने के बाद में तो टेम्परेचर बल्ब पे कम हो गया, तो मर्क्यूरी शुड गो बैक इनसाइड, राइट, तो वो प्रिवेंट करने के लिए वी हैव अ किंक. लेबोरेटरी थर्मोमीटर वी जस्ट कीप इट इन अ बीकर, टेस्ट इट लाइक दैट ओनली एंड नोट टेक द टेम्परेचर, निकाल देंगे तो फिर टेम्परेचर नीचे चला आ जाएगा उसका. So that is the difference. That is why we have a kink. That's the purpose of the kink. Cool. Next question. Give two examples each of conductors and insulators of heat. ठीक है, इसका examples आप लोग ही मुझे दो, जल्दी जल्दी मुझे example दो इसका. Conductors of heat, insulators of heat. Rubber. ठीक है, rubber, wood. कॉपर, यस, कॉपर किसने बोला? दिविज ने कॉपर बोला. ठीक है, आयरन, कूल, सो iron, copper, rubber, wood. ठीक है, these are the good examples. Fill in the blanks, fill in the blanks. The hotness of an object is determined by its what हमने क्या देखा था इसमें? We measure, ये हमने definition पढ़ा है. This is the definition of temperature. ठीक है ना? Temperature. The hotness of an object is determined by its temperature. Temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. Boiling water हम कौन से thermometer से नहीं check कर सकते? Clinical thermometer से. ठीक है, boiling water we have to check using a laboratory thermometer. So measured by a clinical thermometer. ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे thermometer. So clinical thermometer से हम measure नहीं कर सकते. Cool. Next, temperature is measured in degree Celsius. ठीक है, cool, cool, cool. Sir, please menti tomorrow यार, मैं लिख के बता रहा हूं, menti tomorrow. ठीक है, menti कल होगा, फाइन, कल होगा यार menti. So Celsius is the correct answer. Fill in the blanks. No medium is required for the transfer of heat by the process of, ये क्या है? ये इसका आंसर क्या है मुझे बताओ. There are three types of heat transfer: conduction, convection and radiation. तो उसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, जिसको लिक्विड नहीं चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए, वो बस ऐसे ही चला जाएगा वैक्यूम में भी? तो प्रयास सिंह ने बोला रेडिएशन. एब्सोल्युटली करेक्ट, radiation. Radiation is the correct answer. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. ठीक है, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of, मैंने क्या बोला, स्पून में कैसा होगा, मेटल्स में या सॉलिड्स में कैसा होगा हीट ट्रांसफर? वेयर इज माय स्पून? या ये स्पून को मैंने हॉट मिल्क में डाला, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव हॉट मिल्क और मैंने उसके अंदर ये स्पून को डाल दिया, सो हाउ विल द हीट ट्रांसफर? द हीट विल ट्रांसफर बिकॉज ऑफ एक एंड से दूसरा एंड हॉट हो रहा है, राइट? सो इट्स कॉल्ड कंडक्शन. यप, सही सही सही, कंडक्शन इज द करेक्ट आंसर. कंडक्शन. कूल, ग्रेट. Clothes of dash colors absorb more heat better than the clothes of light colors. ठीक है, ये तो यार इंग्लिश का हो गया ना कि यहाँ पे एक साइड लाइट बोल दिया है और हमसे ऑपोजिट पूछ रहा है, उसका ऐसा लग रहा है मुझे. बेसिकली क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स absorb more heat than the clothes of light colors. तो ब्लैक टी शर्ट अगर मैं पहनूंगा तो it will absorb more heat and more light as well. So dark colors.
DARK, डार्क कलर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यस यस, ये आप लोग को सबको पहले से पता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसको अभी मैच द फॉलोइंग करना है हमें। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब आती है? डे, नाइट, समर, विंटर। लैंड ब्रीज कब आती है गाइस? लैंड ब्रीज रात में आती है। लैंड ब्रीज कम्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है, लैंड ब्रीज कम्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। लैंड ब्रीज कम्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सी ब्रीज कम्स ड्यूरिंग द डे टाइम। सी ब्रीज कब आती है? सी ब्रीज कम्स ड्यूरिंग द डे टाइम। एक सेकेंड, आई विल, हाँ ठीक है, डे टाइम में हमको सी ब्रीज आती है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर क्लोथ्स अब्सॉर्ब मोर हीट। ज्यादा हीट कब चाहिए होती है? समर में चाहिए या विंटर में चाहिए हमें हीट? वी नीड हीट, बॉडी हीट कब चाहिए ज्यादा? विंटर में चाहिए। सो वी शुड वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ इन विंटर। विंटर में डार्क कलर्ड क्लोथ पहनना चाहिए और समर में हमें लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना चाहिए, ठीक है, लाइट कलर्ड क्लोथ्स वी शुड वेयर देम इन समर। सी आई मेड अ स्टार ओवर हियर। मुझे इतना खुशी होती है ना जब ऐसे छोटी छोटी चीजें बनाता हूं मैं यहाँ पे। सर व्हाट इज अ डिजिटल थर्मोमीटर? सी डिजिटल थर्मोमीटर इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, बट वो मर्क्यूरी से काम नहीं करता है। इट यूजेस लाइक रेडिएशन चेक करता है, IR रेडिएशन चेक करके वो काम करता है, ठीक है ना, जो यहाँ पे हम माथे पे रखते हैं। और else there would be another one which we can keep in our mouth as well. उसमें कुछ सेंसर्स लगे होंगे and using those sensors it tests, but it does not use mercury, ठीक है। Cool, तो ये हमारे हो गए मैच द फॉलोइंग। डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. विंटर में अगर हम एक के ऊपर एक ज्यादा पतले पतले कपड़े पहन लेंगे, will it keep us hotter or should we wear only one thick piece of cloth? ऐसा क्यों होता है आपको बताइए मुझे। Do you know this? I have explained to you. I told you that wearing one thick layer of blanket से better है you take two thin blankets. Yes or no? Why? Because अगर आप दो पतले पतले blankets ले रहे हो ना, what will happen is, see you have taken one blanket like this, एक blanket आपने ये ओढ़ ली, you have another blanket on top of this, ठीक है। I have a wave as well. ठीक है ठीक है ठीक है, आपने एक ब्लैंकेट ली पहले, ठीक है, you have one blanket, then you have another blanket, ये these are two thin blankets, ठीक है। तो अभी क्या होगा, उनके बीच में एयर जो होगी ना, एयर इज एन इंसुलेटर, ठीक है, एयर क्या है? एयर इंसुलेटर है, तो एयर विल नॉट लेट हीट पास थ्रू इट, इट विल ट्रैप इट, ठीक है। तो यू विल बी वार्मर, हीट आपकी बॉडी में से एस्केप नहीं हो पाएगी। वेयर एज इफ यू टेक ओनली वन थिक ब्लैंकेट, अगर आप एक ही थिक ब्लैंकेट लेंगे, ठीक है ना, एक थिक ब्लैंकेट लेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इट विल कीप यू वार्म बट एयर आपको हेल्प नहीं करेगी। कूल, यस। सो सिमिलरली अब आप जब क्लोथ्स पहनते हो, व्हेन वी वेयर मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, जब हम ज्यादा लेयर्स पहनते हैं क्लोथ्स के, एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन। क्या होगा एयर को? एयर विल गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन, द एयर विल गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन। And since trapped air is a bad conductor, क्या है trapped air? Trapped air is a bad conductor of heat. It will keep us warmer. ये हमें warm रखेगा than just wearing one thick piece of clothing. Is this understood? ये clear है ना सबको? Nice, nice. Because two of them will make it insulated. Yes, 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 yes. Nice. Okay, nice. Great. Okay. स्वयं प्रभा लत्रा, हाय, ठीक है, कूल कूल, ये समझ में आ गया। सर फ्री फायर आईडी प्लीज। यार मैं फ्री फायर नहीं खेला हूं, आई हैव नेवर प्लेड फ्री फायर। लुक एट द गिवन फिगर, ये फिगर देखो आप, गिवन फिगर देखो, एंड मार्क वेयर देयर इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कहां पे कंडक्शन हो रहा है, कहां पे कन्वेक्शन हो रहा है, कहां पे रेडिएशन हो रहा है। तो ठीक है, लेट अस डू दिस, ये करते हैं हम लोग, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल
all, कंडक्शन कहां हो रहा है? दिस फ्लेम इज इन टच विद द वेसल, राइट? ये वेसल को फ्लेम टच कर रहा है, और ये जो टेबल है, ये टेबल को भी फ्लेम टच कर रहा है, दिस मेटल टेबल। तो यहां पे क्या हो रहा है? दिस प्लेस इज वेयर द कंडक्शन इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? कंडक्शन, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये पार्ट पहले गर्म होगा, देन हीट विल स्प्रेड, यहां से ऐसे जाएगी, फिर नीचे नीचे यहां जाएगा, और ये जो वेसल है, ये वेसल में भी ऐसे ऐसा जाएगा, हीट साइडवेज गर्म होगा वेसल, मे बी हैंडल भी गर्म हो जाता अगर मेटल का होता तो। कूल। तो ये कंडक्शन है। सेकेंड वी हैव कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहां पे होगा? कन्वेक्शन विल हैपन इनसाइड द वाटर, ठीक है? वाटर के अंदर क्या होगा? कन्वेक्शन होगा वाटर के अंदर। क्यों? बिकॉज वाटर इज अ फ्लूइड, और फ्लूइड्स में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। तो कन्वेक्शन इज हैपनिंग इन वाटर, कन्वेक्शन। एंड फाइनली वेयर इज द रेडिएशन हैपनिंग? द रेडिएशन इज हैपनिंग साइडवेज। ये जो फ्लेम में से लाइट जैसे जैसे आ रही है ना, वेयर द लाइट इज गोइंग, दैट इज वेयर द रेडिएशन इज ऑल्सो हैपनिंग, ठीक है? ये रेडिएशन है। Cool, that is the radiation. Is that understood everyone? ये सबको समझ में आया ना? Oh my God, मेरे बिल्कुल साइड में रेडिएशन हो रहा है यहाँ पे। तो सर प्लीज टेल, इज देयर मेंटी? मेंटी विल बी टुमारो यार, मेंटी कल होगा, कल होगा मेंटी, कल होगा, कल होगा, कल होगा, कल होगा। मैं जब से स्टार्ट किया मैंने एक्सप्लेनेशन कम किया है, और मेंटी कल होगा मैंने ज्यादा बोला है। देखो जिस दिन मेंटी होता है ना, उस दिन वीडियो के टाइटल में लिखा होता है कि मेंटी होने वाला है। कूल। अगर सरप्राइज मेंटी होगा तो तब नहीं लिखा होगा, बट जनरली लिखा होता है। यस, सो साइडवेज यहाँ पे रेडिएशन होगा। रेडिएशन ऊपर भी जाएगा, लेकिन वहां पे रेडिएशन से ज्यादा कन्वेक्शन और कंडक्शन चल रहा है। तो दिस इज क्लियर एवरीवन? कूल, ये क्लियर है सबको? नाउ इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised that the outer walls of houses be painted white, ठीक है? outer walls of the houses should be painted white। ये मैंने क्या बोला था आपको? हम गर्मा में लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं और विंटर में डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? बिकॉज heat is absorbed more by dark colors, heat is absorbed less by light colors, ठीक है? तो white color reflects back the heat। white color क्या करता है? white color reflects back the heat, वो heat को reflect back कर देता है from the sunlight। Therefore, to keep the house cool, घर को ठंडा रखने के लिए it is advised that we paint the outer walls white। तो हम बाहर के walls को अगर white paint कर देंगे, if we paint it all white, then it will be cooler than if you paint it a dark color। Cool? Yes, to keep the house cool। Yes, 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 yes। सही आंसर कनिष्क, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ईशा, हाय बिरोजा, यू आर बैक, ठीक है? कूल कूल। कनिष्क स्पैम मत करो, मैंने पढ़ लिया एक टाइम, डू नॉट स्पैम। Cool। 8th question। 1 liter of water is mixed with 1 liter of water at 30 degree centigrade। पानी है 30 degree centigrade गरम, and we have some more water which is 50 degree centigrade गरम। 1 लीटर पानी 30 degree centigrade है, 1 लीटर पानी 50 degree centigrade है, ठीक है ना? कितना कितना पानी है हमारे पास? We have a water यहाँ पे, this is 50 degree centigrade, and we have some more water, ये भी 1 लीटर है, ठीक है? 1 लीटर, this is also 1 liter, this is 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अगर हमने इनको मिक्स किया तो कितना डिग्री का रहेगा? विल इट बी 80 डिग्रीज? हीट बढ़ेगी क्या? विल द हीट इंक्रीज? नो, सो इट्स नॉट 80 डिग्रीज।
ठीक है, इट विल बी मोर देन 50 डिग्रीज बट लेस देन 80 डिग्रीज। पता है ये 80 का नंबर कैसा है? दीज पीपल एडेड 50 प्लस 30 80 होता है। ऐसा थोड़ी ना चलता है, टेम्परेचर ऐड कर सकते हो क्या? पानी मिक्स कर रहे हैं यार हम। आपने गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया थोड़ा सा, तो क्या वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना, तो नहीं। सो इट्स मोर देन 50 डिग्री नहीं होगा। wrong, this is also wrong. Will it be 20 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं यार, मिनिमम टेम्परेचर ही 30 डिग्रीज यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें हम और गर्म पानी मिला रहे हैं। वी आर मिक्सिंग हॉटर वाटर, लाइक वी हैव द मिनिमम टेम्परेचर इज ऑलरेडी 30 degrees and we are mixing some 50 degrees water in that. So will it become less? No, so it can't be 20 degrees. So it will be in between 30 degrees and 50 degrees. When we mix them, what will happen is, let me show you. We all know that heat flows from the bodies of higher temperature to lower temperature. Yes or no? High temperature से low temperature पे heat flow करता है, ठीक है ना? So some of the heat from the 50 degree centigrade will go to the 30 degree centigrade, and we will achieve some temperature in between 50 degree centigrade and 30 degree centigrade. तो जब हम दोनों को mix करेंगे तो temperature उनके बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है? So the temperature would be in between 30 degree centigrade and 50 degree centigrade. Yes, 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 great, great. ये सबको समझ में आ गया, cool. तो अभी मुझे बोलो ये क्लियर है क्या? Is this clear guys? ये क्लियर है तो मुझे बोलो. I will go to the next question now. Meanwhile, I'll have some water. हेलो हरिप्रिया। यस, जयवाल बोल रहा है कि यस 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 इट्स क्लियर। प्रथम रॉय डायमंड क्लियर। कनिष्क इज सेइंग एक्सप्लेन अगेन। नो हीट इज नॉट इंक्रीज, या नहीं होगा। कनिष्क क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो, एक पानी बहुत गर्म है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म है, एक पानी थोड़ा गर्म है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा पहले से? 50 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? गर्म होगा क्या? नहीं होगा ना। क्या पानी 30 डिग्री से कम हो जाएगा जो हमने कम गर्म वाला पानी मिक्स किया था? नहीं होगा। तो बीच में क्या रहेगा दोनों के? What will be the temperature in between? The temperature would be something in between. ये दोनों के बीच का रहेगा, ना ज्यादा गर्म रहेगा ना ही ज्यादा ठंडा होगा वो। It will be in between 30 degree centigrade and 50 degree centigrade. Cool? So the correct answer is D. Between 30 degree centigrade and 50 degrees centigrade. Cool? चलो. Now, an iron ball at 40 degree centigrade is dropped in a mug of water containing water at 40 degree centigrade. तो हमारे पास एक आयरन बॉल है, ठीक है? क्या है? आयरन बॉल है। वो उसका टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। और हमारे पास एक मग में पानी है, ठीक है? और वो पानी का टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर? इट्स अगेन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हम उसको मिक्स करेंगे तो विल द हीट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर? क्या आयरन बॉल में से हीट निकल कर पानी में जाएगा? दोनों का टेम्परेचर सेम है तो नहीं जाएगा। इट विल जस्ट रिमेन लाइक दैट। द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ना हीट आयरन बॉल में से पानी में जाएगा ना पानी में से आयरन बॉल में जाएगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। दोनों का टेम्परेचर बोथ आर इक्वली हॉट, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट यहां से वहां कहीं नहीं जा रहा है यहाँ पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इट्स नॉट गोइंग टू फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या? नहीं, नहीं होगा इंक्रीज। या यस सर, क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, नाइस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, स्टेनलेस स्टील का जो पैन होता है उसको कभी कभी ऐसा होता है ना, पैन के पीछे नीचे है ना बॉटम में कॉपर प्लेट लगी होगी। सो व्हाई वुड दैट बी देयर? लेट मी सी। आप लोग आंसर मुझे देके बताओ, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? यू पीपल ट्राई टू आंसर दिस फर्स्ट। जल्दी जल्दी जल्दी।
कूल। Nice. For heat transfer, so basically what happens is copper is a better conductor of heat. See, both steel and copper are good conductors of heat, yes, but copper is even better. Like copper is one of the best conductors of heat. So what we do is नीचे हम क्या करेंगे, पैन के नीचे कॉपर लगाने से हीट ट्रांसफर वुड बी बेटर, कंडक्शन जल्दी होगा और ज्यादा अच्छे होगा, ठीक है ना. So less heat would be wasted. So because copper is a better conductor of heat than steel. So now we have completed the NCERT exercises. So आप screenshots बाद में जाके ले सकते हो and use them as your notes. और हमने important definitions भी किए हैं. So on this chapter, tomorrow we are going to have, we will have मेंटी ऑन हीट, ठीक है. हीट पे हम मेंटी रखेंगे कल विल हैव अ मेंटी ऑन हीट. कूल. हीट के ऊपर हमारा कल मेंटी रहेगा एंड इट विल बी एट 7 o'clock, ठीक है, 7 PM. नाइस. तो ये होगा. एंड समवन वाज आस्किंग के यार हाउ डू वी कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, but I'm just telling it for the person who was asking me कि Fahrenheit degree Fahrenheit को how do we convert it into degree Celsius. How do we do that is, समझो अगर 80 है, 80 Fahrenheit चेक करना है, तो what will do 80 minus 32, ठीक है ना. 80 minus 30, एक सेकेंड, this is the formula, ठीक है ना. 80 minus 32 into 5/9. ये जब आप करोगे तो 8 है, अगर फॉर एग्जाम्पल 8 फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है तो 8 minus 32 into 5/9 करने से आपको क्या आ जाएगा. यहाँ पे आपको ये है, ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट है, और इसका जो आंसर आएगा वो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, ठीक है. कूल. ये समझ में आ गया ना. ग्रेट. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज. आज के लिए इतना ही है. अभी जाके वीडियो को लाइक करो, ये जो अंगूठा है वो अंगूठा दिखा दो, शेयर करो. कल के मेंटी में अपने फ्रेंड्स को और ज्यादा बुलाओ. आई नीड लॉट ऑफ फ्रेंड्स. ये जो घंटा है ना, इसको ऐसे दबा दो, जाके टंग ऐसे करके दब जाना चाहिए घंटा. सब्सक्राइब भी कर दो यार वीडियो को. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक इट, ठीक है ना. So that is all for today. If you have any more doubts, you can ask me the doubts. अगर आपको कुछ doubts है तो you can ask me, or else this is the end for today. आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना. आज के लिए क्या है, इतना काफी है. So thanks guys, it was a lot of fun. Bye everyone. Bye sir, you teach so well. Thank you so much guys. Thank you for saying that. So now I'm going to end the video. ओके. लाइक किया कि नहीं किया, मुझे देखना है आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, ठीक है. सो दैट इज ऑल गाइस. बाय. ओके. मेंटी टुमारो मेंटी है. यस. मेंटी इज टुमारो सेम टाइम 7 o'clock को है मेंटी, ठीक है ना. चलो. Thank you so much and be there in the menti. Get your friends as well. अपने friends को भी लेकर आना चाहिए. See you tomorrow. Cow.